Today we are going to start our exercise 7.2. First question. In an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. Show that first point is OB equals to OC and second AO bisects angle A. This is given that ABC is an isosceles triangle. That means AB is equals to AC. This is given to us. And the bisectors of angle B and angle C intersect at O. बाइसेक्टर्स का मतलब जो एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो ये एंगल बी का बाइसेक्टर और ये एंगल सी का बाइसेक्टर ओ पर आकर मिल रहे हैं. अब हमें ओ से ए को ज्वाइन करना है. अब उसके बाद में हमें प्रूव करना है कि ओ बी जो है वो ओ सी के इक्वल है एंड देन ये ए ओ जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है. नाउ गिवन टू अस AB equals to AC, OB and OC are bisectors of angle B and angle C. Then we have to prove that OB is equals to OC and then second part AO bisects angle A. Now for this AB is equals to AC, this is given to us. So angle this complete angle B will be equal to angle C. Angles opposite to equal side by theorem. Angles opposite to equal sides are equal. अगर ये कंप्लीट एंगल्स इक्वल हैं तो इनके हाफ हाफ पार्ट्स भी इक्वल होंगे. दैट मीन्स कि एंगल बी का आधा एंगल ए सी के आधे के इक्वल होगा अगर पूरा इक्वल है तो. सो वी कैन से दिस दैट ए बी ओ दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्टर है तो ये हाफ पार्ट हो गया एंगल बी का और ये हाफ पार्ट हो गया एंगल सी का. सो दिस एंगल बी ए बी ओ विल बी इक्वल टू ए सी ओ. नाउ taking triangle ABO and ACO, AB is equals to AC, this is given to us, and this angle is equals to this angle, we have proved this, and AO is common in both the triangles. So we can say that these two triangles are congruent to each other by SAS congruence condition. Then by CPCT we will say that this OB is equals to OC and this angle is equals to this angle. So that means if this angle is equals to this angle then this line is bisecting this angle, we can say, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये एंगल ए इस लाइन की वजह से, तो हमें यही सेकंड में यही प्रूव करना था. सो दैट मीन्स ए ओ इज बाइसेक्टिंग एंगल ए. नाउ क्वेश्चन सेकंड. इन ट्राइंगल ए बी सी AD is the perpendicular bisector of BC. This AD is perpendicular bisector of BC. perpendicular bisector का मतलब होता है कि 90 डिग्री भी बनाती है वो लाइन उस लाइन के ऊपर और उस लाइन को हाफ हाफ में भी डिवाइड करती है. दैट मीन्स ये यहाँ पर 90 डिग्री भी फॉर्म हो रहा है और साथ साथ में BD जो है वो DC के इक्वल भी है. नाउ शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC. दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस ट्राइंगल एज isosceles triangles, that is AB is equals to AC. Given we have written that AD is the perpendicular bisector of BC, that means BD is equals to DC, and then ADB is equals to ADC, that is 90 डिग्री, क्योंकि perpendicular given है और हमें प्रूफ करना है इसको isosceles triangle, that means कि AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है. Now we'll take these two triangles ABD and ACD. In this first condition is given to us this angle is equals to this angle 90 degree. BD is equals to DC, this is also given to us, and AD is common in both the triangles. So by SAS these two triangles will be congruent to each other. Then by CPCT we will say that AB is equals to AC. That means कि triangle ABC is an isosceles triangle. Now question third. ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. This is given to us that this is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. And these two BE and CF are the altitudes which are drawn from B and C vertices. And now we have to prove that these two altitudes are equal, that is BE is equals to CF. We have to prove this.
ऑल्टीट्यूड्स का मतलब होता है वो लाइन जो 90 डिग्री फॉर्म करती है। तो ये बी ई जो है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है इस लाइन के ऊपर, और सेम इसी तरह से सी एफ जो है वो ए बी के ऊपर 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस। नाउ व्हाट विल डू, इट इज गिवन टू अस दैट ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, बी ई एंड सी एफ आर ऑल्टीट्यूड्स, एंड वी हैव टू प्रूव बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ। नाउ अगर हम ये वाला ट्राइंगल ए बी ई और ए सी एफ लेते हैं, तो आई हैव कंस्ट्रक्टेड दिस इन सेपरेटली, तो इसमें ये एंगल ए तो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। दूसरी कंडीशन, ए बी जो है इस ट्राइंगल की ए बी ई की, ये ए बी इसकी ए सी के इक्वल गिवन है। देन थर्ड इज ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी गिवन है मुझे। सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी बाय एंगल साइड congruence condition by AAS. Now by CPCT will say that BE is equals to CF, hence proved. यही हमें प्रूव करना था, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने चेक कर लिया, BE CF के इक्वल है, सो इट इज प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन 4। In question 4th, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides these are equal. अब इस क्वेश्चन में BE और CF ये ऑल्टीट्यूड्स हैं और ये इक्वल गिवन है। नाउ वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल ABE is congruent to ACF and AB is equals to, that is these two triangles are this triangle ABC is an isosceles triangle. अब इसमें अपोजिट प्रूफ करना है, हमें गिवन है कि ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स जो हैं वो इक्वल हैं, और उसके लिए ये 90 अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऑल्टीट्यूड्स का मतलब जो लाइन जो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, 90 डिग्री एंगल है वही सेम दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। और थर्ड कंडीशन हो गई हमारी, BE जो है वो CF के इक्वल है। So by angle side these two triangles will be congruent to each other. Now by CPCT we can say that AB is equals to AC. So that is that triangle ABC is an isosceles triangle. Hence proved. Now question 5. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equals to ACD. ये ABC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल और ये DBC भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो कि दोनों ट्राइंगल्स क्या है, इनका बेस जो है वो सेम है। दैट मीन्स ये BC जो है दोनों में कॉमन हो गई, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB AC के इक्वल गिवन है और DB जो है वो DC के इक्वल गिवन है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल इज equal to this angle. This question can be solved by two methods. First method is that join A to D. Then we'll take these two triangles. This ABD and ACD will take. Now after this, AB is equal to AC. This is given to us. BD is equals to DC. This is given to us. Then AD is common in both the triangles. So by SSS congruence condition, these two triangles will be congruent to each other. Then by CPCT we can say that ABD is equals to ACD. And second method is this line and this line, AB is equals to AC, so angles opposite to this will also be equal. That means this angle is equals to this angle. सिमिलर वे ये दोनों एंगल्स, ये दोनों साइड्स भी इक्वल गिवन है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। नाउ आफ्टर एडिंग दीज टू विल गेट दीज टू, B इज इक्वल्स टू C एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ABD इज इक्वल्स टू ACD. नाउ क्वेश्चन 6. Question 6 is ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC. Side BA is produced to D.
such that AD is equals to AB, show that angle BCD is a right triangle. ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के इक्वल गिवन है. साइड BA को प्रोड्यूस किया गया D तक इस तरह से कि ये जो AD है वो AB के इक्वल है. तो हम कह सकते हैं AB, AC और AD ये तीनों एक दूसरे के इक्वल लाइंस हैं. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल BCD इज अ 90 डिग्री एंगल, दैट मीन्स इज अ राइट एंगल. फॉर प्रूविंग दिस AB, लेट्स टेक फर्स्ट दिस ट्राइंगल ABC. In this AB is equals to AC, so we can say that angle B is equals to angle C. Angles opposite to the equal sides are equal. So this angle is equals to this angle. Similar way we'll take this ADC triangle. It is given that AC and AD is equal. So we can say that this angle will be equal to this angle. Now we are aware of the angle sum property of a triangle. That is, the sum of all the angles of a triangle is 180 degree. So this angle plus this angle plus this total angle, that means angle DBC plus angle BDC plus angle BCD is equals to 180 degree. अब BCD को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है तो ये यहाँ पर BCD एज इट इज रख देंगे. अब ये एंगल है DBC, दैट मीन्स ये एंगल हमने किसके इक्वल प्रूव किया था, इस एंगल के. तो हम इसकी जगह DBC की जगह हम लिख देंगे एंगल ACB, दैट इज दिस एंगल. और इस एंगल को हमने इसके इक्वल प्रूफ किया था ACD के इक्वल. अब ACB और ACD को मिलाते हैं तो हमें मिलता है BCD. तो पहले हमने इनको एक्सचेंज कर दिया ACB और ACD से, और फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा BCD. और एक BCD ऑलरेडी यहाँ था तो BCD प्लस BCD विल मेक इट 2BCD, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड जब इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 180/2 विल गिव अस 90 डिग्री. दैट मीन्स एंगल BCD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. दैट इज एंगल BCD इज अ राइट एंगल, हैंस proved. Now question 7th. ABC is a right angle triangle in which angle A is equals to 90 degree and AB is equals to AC. Find angle B and angle C. ABC एक right angle triangle है और right angle कौन से point पर है, A point पर. That means angle A is given to us 90 degree. ये हमने कंस्ट्रक्शन किया और इसमें गिवन है AB AC के इक्वल और हमें फाइंड करना है एंगल B और एंगल C का मेजर. अब AB AC के इक्वल गिवन है तो इनकी अपोजिट साइड्स क्या हो गई, इसकी अपोजिट ये साइड्स हैं तो इनकी अपोजिट एंगल्स हो गए. इसका अपोजिट एंगल हो गया एंगल C और इस AC का अपोजिट एंगल हो गया एंगल B. तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर equal. Now we'll take this triangle ABC. So sum of all the angles of a triangle is 180 degree by angle sum property of a triangle. So angle A plus B plus C is equals to 180 degree. Angle A हमें 90 degree given है, हमने उसको वो लिख दिया. और एंगल B और एंगल C को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया था तो एंगल C की जगह मैंने एंगल B लिख दिया. तो 90 प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड दिस जब हम इस 90 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90. तो ये हो जाएगा एंगल B विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 विल बिकम 90 डिग्री. और एंगल B प्लस एंगल B 2 एंगल B हो गया था, ये 2 जब इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा एंगल B इज इक्वल्स टू 90/2, दैट इज 45 डिग्री. इसका मतलब एंगल B और एंगल C किसके इक्वल है, 45 डिग्री के इक्वल है. नाउ क्वेश्चन 8. शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच. अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री के इक्वल हैं, ये प्रूव करना है. यानी हमें ये गिवन है कि एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, तीनों इक्वल हैं. हमें प्रूव करना है एंगल A एंगल B और एंगल C तीनों 60 डिग्री के इक्वल होंगे. अब AB BC के इक्वल गिवन है तो इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे. तो AB का अपोजिट एंगल C हो गया और BC का अपोजिट एंगल A हो गया. तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. सेम वे BC जो है वो AC के इक्वल है,
क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल गिवन थी, तो बी सी ए सी के इक्वल है, सो वी कैन से एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, इन दोनों का अपोजिट एंगल्स होगा एंगल ए और एंगल बी। अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं, तो उसके ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं एंगल बी को एंगल ए से और एंगल सी को एंगल ए से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से, और वो हमने रिप्लेस करने के बाद हमने लिख दिया एंगल ए को एज इट इज एंगल ए रहने दिया, एंगल बी को हमने एंगल ए लिख दिया और एंगल सी को भी हमने एंगल ए लिख दिया। तो एंगल ए प्लस एंगल ए विल मेक इट 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और जब ये नीचे 180 के नीचे 3 शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, दैट इज 60 डिग्री। हेंस दैट इज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, हेंस प्रूव्ड।